Hello students, so let us continue the analysis of previous year question paper 2023. Previous year question paper 2011 to 22 is already covered. Okay, so currently we are doing the 2023 analysis, and after that we will do the 2024 analysis. So what is the importance of this analysis and everything I have already explained. Description box में ये 20 PYQ analysis का जो course है वो कैसे मिला, कैसे सब्सक्राइब करना है, इसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया है. सो यू शुड गो एंड सी द लिंक so that you will get the entire content of this PYQ analysis notes and all the playlists which are dedicated for that paid channel. Okay, so let us start the PYQ analysis. Up to 32 questions already देखे हैं हमने. So we will start from the question number 33. So question number 33, these are the polity questions, maximum are the static questions, but still there are some logical things, some elimination techniques that will work. Okay, how to approach the polity questions, static syllabus questions, we will see in this video. Okay, so from 32 to 40 questions we will see. Question number 33, which one of the following statement best reflect the chief purpose of the constitution of a country? What is the chief purpose of a constitution of any country? Not here they are not asking India or anything, they are asking the constitution of a country, any country. Chief purpose of the constitution क्या है? So why this question came and how to answer this question? Okay, so first of all let us see all the statements. In the first reading you will find like all the questions, all the options are correct. Like it determines the objective of making the necessary laws. Obviously constitution will definitely give the objectives of the necessary laws. जो भी laws बनाने हैं country में, it will give the determine the objectives of the making of the laws. Then it enables the creation of political parties of the parties and governments. मतलब constitution में political parties, political offices and government ये भी कैसे होता है, इसका भी information मतलब that is also there. It defines and limits the powers of the government, ये भी दिया होता है. Okay, so why this question and how to answer these questions? All the options looks correct, like it secures social justice, social equality and social security. So चारों options correct दिखते हैं, but it is asking the chief purpose. What is actual purpose of the constitution? Constitution में ये चीज नहीं है तो भी चलेगा. What it determine the objective of the making the necessary laws. ये necessary law बनाना है नहीं बनाना है, that is not necessary condition in the constitution. Okay, then it enables the creation of the political offices and government. ये भी नहीं है तो भी चलेगा. Okay, in the constitution creation of the political offices and government ये नहीं है तो भी चलेगा, but it should define and limit the powers of the government. गवर्नमेंट के पावर्स, गवर्नमेंट क्या कर सकता है, व्हाट इज द अथॉरिटी टू द गवर्नमेंट, दैट शुड बी डेफिनेटली डिफाइंड एंड लिमिट. तो लिमिटेड गवर्नमेंट एक कंसेप्ट है. लिमिटेड गवर्नमेंट इज वन कंसेप्ट. मल्टीपल टाइम्स गवर्नमेंट, लिमिटेड गवर्नमेंट या लिमिटेड कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन का लिमिटेड कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसे एक क्वेश्चन आया है बहुत बार, मल्टीपल टाइम्स दिस लिमिटेड कॉन्स्टिट्यूशन और लिमिटेड गवर्नमेंट कंसेप्ट आया है. सो वहां से आपको उठाना है कि लॉजिक लगाना है कि दिस इज द स्टेटमेंट विच इज डेफिनेटली करेक्ट. बाकी चीजें इट सिक्योर सोशल जस्टिस, सोशल इक्वालिटी, सोशल सिक्योरिटी, ऑल दीज थिंग्स आर ओके, ऑल दीज थिंग्स आर there in the constitutions, but that are not the necessary things. Chief purpose of the constitution क्या होना चाहिए? It should define and limit the powers of the government. So this question came from the limited government concept or limited constitution concept. This is there in the NCERTs. This is there explained nicely in the PYQ analysis notes. So please go through the PYQ analysis notes. या जो भी 2011 से 22 तक का एनालिसिस है, इसमें भी मैंने लिमिटेड गवर्नमेंट, लिमिटेड कॉन्स्टिट्यूशन इज नाइसली एक्सप्लेन्ड. तो the answer of this question number 33 is it defines and limits. और एक चीज है यहाँ पे, it determines एक ही चीज है, it enables एक ही चीज है, it secures एक ही है, but here it defines and limits, दो चीजें एक ही साथ कर रहा है. Okay, two things at a time कर रहा है. मतलब कि chief purpose of the constitution यहाँ पे सिर्फ it determines है, यहाँ पे सिर्फ it enables है, यहाँ पे सिर्फ it secures है, बट यहाँ पे डिफाइंस एंड लिमिट्स, दो चीजें है एक ही स्टेटमेंट में. मल्टीपल थिंग्स विद इन द स्टेटमेंट है ना, दैट स्टेटमेंट आल्सो बिकम द पॉसिबिलिटीज करेक्ट आने का मोर है. एक्चुअली दिस इज द लिमिटेड गवर्नमेंट कंसेप्ट, बट अगर आपको लॉजिक पे ही खेलना है, लॉजिक पे ही टिक मार्क करना है, तो ये भी लॉजिक लगाना है कि हाँ देयर आर द टू टर्म्स विद इन द स्टेटमेंट.
बाकी बाकी स्टेटमेंट्स में ओनली वन टर्म है, डिटरमाइन, इनेबल, सिक्योर, बट यहाँ पे डिफाइन एंड लिमिट कर रहा है पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर. नाउ वी विल गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. In India, which one of the following constitutional amendments was widely believed to be enacted to overcome the judicial interpretation of the fundamental rights? Okay, फंडामेंटल राइट का जुडिशियल इंटरप्रिटेशन को चेंज करने के लिए कौन सा अमेंडमेंट किया? द क्वेश्चन का मीनिंग ये है. तो एक्चुअली दिस क्वेश्चन इज कैंसल्ड बाय द यूपीएससी. यूपीएससी विल जनरली नॉट कैंसल द क्वेश्चंस, बट इस क्वेश्चन का जब आंसर की आया है तो इस क्वेश्चन का आंसर की में आंसर नहीं दिया है. The reason you can see the first amendment, 42nd amendment, 44th amendment, 86th amendment, all these amendments जो भी है उसमें फंडामेंटल राइट्स को चेंज किया है. हियर सम 42nd में बहुत ज्यादा किया है, बट 44th, 86th, फर्स्ट ऑल द अमेंडमेंट्स में फंडामेंटल राइट्स में चेंजेस हुए हैं. सो इट विल कंफ्यूज द टिक मार्क, मतलब कोई 42nd करेगा, कोई 44. लॉजिकली देखा जाए तो ऑल द आंसर्स कैन बी करेक्ट. ओके, तो इसीलिए मतलब उन्होंने क्या पूछा है, ओनली वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, एक ही लिखना है, बट देयर आर मल्टीपल आंसर्स ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके, क्योंकि जुडिशियल इंटरप्रिटेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स सारे अमेंडमेंट में चेंज हुए थे. ओके, इस मतलब यहाँ पे जो भी दिए फर्स्ट, 42nd, 44th, 86, तो ऐसे जब क्वेश्चंस होते हैं जिसमें मल्टीपल आंसर आने का पॉसिबिलिटी है, तो ऐसा वाला क्वेश्चन एक क्वेश्चन है 2023 के क्वेश्चन पेपर में जो यूपीएससी ने कैंसिल किया है. ओके, सो विल नॉट डिस्कस द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, बट व्हाट इज द ट्रिक हियर. फर्स्ट अमेंडमेंट, 42nd अमेंडमेंट, 44th अमेंडमेंट एंड 86th अमेंडमेंट, यूपीएससी क्या करती है, ये क्वेश्चन यूपीएससी को कैंसिल करना पड़ा है, बट यूपीएससी विल प्ले वन गेम. ये चार अमेंडमेंट के यूपीएससी विल सेट द क्वेश्चंस, मे बी 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चंस, ये अमेंडमेंट्स किसके बारे में, व्हाट इज दीज अमेंडमेंट्स, 86th अमेंडमेंट क्यों था, 44th क्या था, कब हुआ, एवरीथिंग दे विल आस्क. कौन से फंडामेंटल राइट्स या क्या क्या चेंजेस हुए थे, व्हाट आर्टिकल्स वर एडेड, व्हाट आर्टिकल्स वर रिपील्ड, एवरीथिंग दे कैन आस्क. तो दिस क्वेश्चंस बिकम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. जब भी ऐसा कुछ कंट्रोवर्शियल होता है, क्वेश्चन कैंसिल करना पड़ता है या क्वेश्चन का आंसर चेंज होता है, when these possibilities are there or these things are there, that options and that question become very very important, and you have to study that question in more detail. Okay, तो ऐसे क्वेश्चन का जो भी पॉइंट्स है उससे हम पीवाईक्यू एनालिसिस के नोट्स है उसमें ज्यादा पॉइंट्स ऐड करते हैं. ओके, एंड उसका एक्सप्लेनेशन अच्छे से नोट्स में किया जाता है. ओके, सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. हाउ मेनी आर द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज? सो दिस इज द कंप्लीटली द फैक्चुअल क्वेश्चन, इसमें कुछ भी ट्रिक नहीं है, क्योंकि हाउ मेनी आर द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, तो नोट्स में या नोट्स हो या आपका एनसीईआरटीज हो, कहीं से भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज क्या है, स्टैट्यूटरी बॉडीज क्या है, एग्जीक्यूटिव बॉडीज क्या है, एवरीथिंग वी विल एक्सप्लेन, एंड नोट्स में ऑलरेडी है. यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करते बैठूंगा तो दैट विल बी ह्यूज टाइम. जस्ट आंसर बताता हूँ इसका. ओनली वन इज द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, दैट इज द नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस. 102nd अमेंडमेंट में 102nd अमेंडमेंट हुआ था, तब ये कमीशन बनाया था. ओके, द कमीशन, द नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस. द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी. Okay, then the National Consumer Dispute Redressal is also a statutory body, and the National Law Commission is an executive body. Executive क्या है, statutory क्या है, and constitutional body क्या है. Constitutional body is a body made by the constitution. Statutory body is the body made by the law of the parliament, and the executive body क्या है, only ministries will decide, cabinet minister, prime minister, all these people will decide. उसमें कुछ भी law नहीं होता है. It can be complete control of the government, current government. जो भी suppose there is the means Modi government is there, that they will decide the executive body. So National Law Commission who will decide the executive body. It is executive body made by the current government. Okay, there will not be any say of the parliament. Okay, parliament will not decide. तो parliament जो decide करता है उसको statutory law statutory body बोलते हैं. Constitutional body constitution से आता है. So the detailed explanation we will see when we are going to revise the PYQ analysis again, and when we are going to see the basic concepts, prelims 2025 के लिए all the basic concepts we will see, तब I will explain. Okay, so इसका आंसर हो गया the National Commission for Backward Class, only one is the answer. Okay, so this is the factual question, no logic, nothing. You have to
मे बी रिमेम्बर द थिंग्स, मग अप द थिंग्स, कभी कभी लॉजिक से याद रखना है कि हाँ नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास के लिए थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट वाला बॉडी रहेगा. ह्यूमन राइट्स, नेशनल लॉ कमीशन, ऑल दीज आर द स्टेट्यूटरी. बट बैकवर्ड क्लास को इम्प्रूवमेंट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में ही मतलब ये दिया है, प्रोविजन दिया है. ओके, तो ये आपको थोड़ा सा लॉजिक से भी याद रख सकते हैं. वंस यू अंडरस्टैंड द यूपीएससी सिलेबस, अच्छे से पढ़ा तो बहुत चीजें ऐसी होती है यू डो नीड नॉट टू रिमेम्बर. ओके, आपको विद इन द मतलब ऑन द स्पॉट आपको समझ में आता है कि वो क्या है. ओके, सो सम मेनी थिंग्स यू नीड नॉट टू रिमेम्बर. ओके, नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? करेक्ट स्टेटमेंट्स पूछे, बहुत बड़ा क्वेश्चन है. प्रेसिडेंट के इलेक्शन के बारे में क्वेश्चन है. ओके, सो लेट अस सी वन बाय वन. स्टेटमेंट 1 क्या बोल रहा है? इफ द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज डिक्लेयर्ड वाइड बाय द सुप्रीम कोर्ट, all the acts done by him or her in the performance of his office become invalid. Suppose प्रेसिडेंट को एक प्रेसिडेंट को सिलेक्ट किया, सिंपल लॉजिक है, वो एक प्रेसिडेंट को सिलेक्ट किया और उसने एक लॉ पे साइन किया और बाद में उसका इलेक्शन अगर सुप्रीम कोर्ट ने वाइड मतलब उसको खारिज किया कि ही इज नॉट द करेक्ट प्रेसिडेंट सम बिकॉज ऑफ सम रीजंस, उसको वाइड किया. बट उस ऑफिस, दैट ऑफिस इज सो डिग्निफाइड ऑफिस कि उस ऑफिस में जब दैट पर्सन वाज देयर इन दैट ऑफिस, तो दैट एक्ट विल नॉट बिकम इनवैलिड. ओके, सो ये एक्ट बिकम इनवैलिड. तो ऐसे हुआ तो देयर विल बी नॉट नो इम्पोर्टेंस. ओके, तो प्रेसिडेंट के ऑफिस में जब तक है, उसने अगर साइन किया एक लॉ पे या एक अमेंडमेंट पे या वॉट एवर विल बी देयर, अगर दैट पर्सन साइन दैट the election is means that office is having so authority कि उसका इलेक्शन बाद में वाइड भी किया तो भी उसका जो उसने किया है एक्ट या साइन या जो भी है, इट विल नॉट बिकम इनवैलिड, इट विल बी वैलिड. ओके, सो इसलिए दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग. तो ऐसी चीजें आपको याद रखना है या समझ लेना है कि हाँ प्रेसिडेंट का ऑफिस इतना इंपॉर्टेंट है कि उसका बाद में अगर इलेक्शन खारिज भी हुआ तो उसके ऑफिस में होते हुए जो भी एक्ट या जो भी थिंग्स उसने किए है, उन्होंने किए है, that will not become invalid. Okay, second statement क्या है? His election can be postponed on the ground that some legislative assemblies have been dissolved and elections are yet to take place. तो postpone उनके election can be postponed. This is also wrong. President office is such a important office. उनका इलेक्शन पोस्टपोन करना इज वेरी वेरी डिफिकल्ट. और द रीजन क्या बोल रहे हैं कि कुछ लेजिस्लेटिव असेंबलीज आर डिसॉल्व्ड एंड इलेक्शंस आर येट टू कम. तो इलेक्शंस लेजिस्लेटिव असेंबलीज का इलेक्शन होता रहेगा, द लेजिस्लेटिव असेंबलीज डिसॉल्व होते रहेंगे. ऐसे अगर देखा जाए तो प्रेसिडेंट का इलेक्शन लॉजिकली देखा जाए तो देयर आर द 28 और 29 लेजिस्लेटिव असेंबलीज. ओके, तो एक ना एक डिसॉल्व ही रहेगा समटाइम्स. ओके, उस टाइम पे एक ना एक डिसॉल्व ही रहेगा. तो ऐसे देखा जाए तो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होगा ही नहीं. ओके, लॉजिक समझ रहे हैं आप? तो ऐसे लॉजिक से आपको काम करना है. इसलिए स्टेटमेंट 2 आल्सो रॉन्ग. एंड द थर्ड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? व्हेन द बिल इज प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट, कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब्स टाइम लिमिट. कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब्स द टाइम लिमिट. रॉन्ग है. I have already explained and I will explain again. Constitution will not define anything, will not describe any time limit or anything for whatever the things. मतलब कि गवर्नर हो, प्रेसिडेंट हो या किसी भी मतलब कैसे लॉ पे असेंट देना या बिल वापस करने का टाइम नहीं है, बिल साथ में रखने का कुछ भी एक्सप्लेनेशन नहीं है. देर आर मल्टीपल थिंग्स विच आर ब्लर. ओके, मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन में जानबूझ के कुछ ऐसी चीजें रखी है कि देयर इज नो क्लैरिटी, मेनी थिंग्स आर इनक्लियर. ओके, क्लियर नहीं है कुछ भी. तो टाइम लिमिट दिया है, ऐसे जिधर भी आता है वेयर एवर देयर विल कम द टाइम लिमिट, कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब्स द टाइम लिमिट या कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस सच अ ऑफिस, कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस दिस फंक्शंस, कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस दैट फंक्शंस. ऐसे जब भी डेफिनेशन या टाइम लिमिट या ऐसी चीजें आते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, दैट स्टेटमेंट बिकम्स रॉन्ग. तो इसलिए इसका आंसर हो गया डी. नन ऑफ द अबव ऑप्शंस इज करेक्ट. ओके, सो लेट अस मूव टू द क्वेश्चन नंबर 37. हाउ मेनी आर द करेक्ट स्टेटमेंट्स? करेक्ट स्टेटमेंट्स कितने हैं? ओके, सो व्हेन द लोकसभा ट्रांसमिट फाइनेंस बिल टू द राज्यसभा, इट कैन अमेंड और रिजेक्ट द बिल. स्टेटमेंट देखो, लोकसभा ने फाइनेंस बिल अगर राज्यसभा को ट्रांसमिट किया एंड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? इट कैन अमेंड और रिजेक्ट. ये रॉन्ग है क्योंकि राज्यसभा, लोकसभा इज हैविंग द
सोल अथॉरिटी, मतलब कि फाइनेंस बिल हो या मनी बिल हो, अगर राज्यसभा को जाता है तो राज्यसभा विल नॉट बी एबल टू रिजेक्ट और अमेंड द बिल, इट कैन ओनली रिकमेंड, मतलब कि राज्यसभा ओनली रिकमेंडेशंस दे सकता है, इसलिए स्टेटमेंट 1 इज रॉन्ग, फाइनेंस बिल कैनॉट बी अमेंडेड और रिजेक्टेड। ओके, स्टेटमेंट 2 क्या बोल रहा है, व्हेन लोकसभा ट्रांसमिट मनी बिल टू द राज्यसभा इट कैनॉट अमेंड, यहाँ पे सही बोला है, इट कैनॉट अमेंड और रिजेक्ट, इट कैन ओनली मेक द रिकमेंडेशंस, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। ओके, स्टेटमेंट 1 रॉन्ग है क्योंकि फाइनेंस बिल को अमेंड या रिजेक्ट करने का बोल रहा है, बट फाइनेंस बिल कैनॉट बी अमेंडेड और रिजेक्टेड, बट मनी बिल का सही बोला है। बाद में थर्ड स्टेटमेंट देखो आप कितने अच्छे से लिखा है, इन केस ऑफ डिसएग्रीमेंट नो जॉइंट सिटिंग फॉर द मनी बिल, नो जॉइंट सिटिंग फॉर द मनी बिल बट जॉइंट सिटिंग बिकम्स नेसेसरी फॉर द फाइनेंस बिल, मतलब कि यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि जॉइंट सिटिंग मनी बिल को अलाउड ही नहीं है, जॉइंट सिटिंग इज नॉट देयर इन द मनी बिल, बट फाइनेंस बिल को मनी बिल, फाइनेंस बिल को जॉइंट सिटिंग है, बट यहाँ पे लिखते टाइम कैसे लिखा है, इट बिकम्स नेसेसरी, ऐसे नहीं लिखा है कि जॉइंट सिटिंग इज देयर इन द फाइनेंस बिल, बिकम्स नेसेसरी, तो लिखते टाइम या जो भी ऐसे बिकम्स नेसेसरी या रिकमेंडेड, द जॉइंट सिटिंग इज रिकमेंडेड बाय द प्रेसिडेंट, तो ऐसे जब वर्ड आते हैं ना, नेसेसिटी, रिकमेंडेशन, इनेबल्स, ऐसे वर्ड जब आते हैं ना, मतलब कि एक एग्जांपल बोल रहा हूँ, इनेबल्स द जॉइंट सिटिंग, इनेबल्स द डेडलॉक टू रिमूव द डेडलॉक बिटवीन द फाइनेंस टू हाउसेस, तो मनी बिल के लिए जॉइंट सिटिंग नहीं है, बट फाइनेंस बिल के लिए जॉइंट सिटिंग है, बट लिखते टाइम व्हेन यूपीएससी इज राइटिंग इन द ऑप्शन, हाउ ही इज राइटिंग, joint sitting becomes necessary, it is not writing but joint sitting is not there in the finance bill or joint sitting is there, becomes necessary। और एक लॉजिक है जो मैंने बोला है, आधे स्टेटमेंट में बोल के कॉमा देके बट जब आता है स्टेटमेंट के बीच में, कॉमा के बाद बट एंड कुछ और एक्सप्लेनेशन व्हाटएवर में भी, पहले आधे स्टेटमेंट में मनी बिल के बारे में बोला है, आधे स्टेटमेंट के बाद फाइनेंस बिल के बारे में बोला है, बट लगा के अगर दो स्टेटमेंट्स कंबाइन करते तो मल्टीपल टाइम्स 99% टाइम्स दैट स्टेटमेंट इज करेक्ट, दिस इज द स्टैटिक क्वेश्चन। ओके, स्टैटिक है, नो डाउट, आपको पता होना है, यू हैव स्टडीड, हमने पढ़ा है, हम आई हैव एक्सप्लेन दिस पॉइंट मल्टीपल टाइम, तो आपने अगर पीवाईक्यू एनालिसिस देखा है या मेरे वीडियोस देखे हैं स्टैटिक सिलेबस के, आपको पता ही होना है, बट फिर भी अगर एग्जाम में लगाना ही है लॉजिक, तो दीज आर द लॉजिक, सो इसलिए ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है, तो ओनली 2 इज द ऑप्शन, 2 and 3, 1 is wrong, only two means क्या है, दो स्टेटमेंट्स करेक्ट है, ये भी आपको याद रखना है, ये भी आपको समझ लेना है, only 1, only 2, only 3 का जो है ना, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है कि हाउ मेनी आर करेक्ट पूछा है, which one is करेक्ट नहीं पूछा है, हाउ मेनी आर करेक्ट, तो आपको अगर only 2, आपको लगेगा कि only 2 means only this, only 2 means 2 statements are correct, मतलब 2 and 3, 1 is wrong, ओनली 1 मीन्स ओनली 1 होता तो कोई एक स्टेटमेंट करेक्ट होता है, ये भी आपको समझ लेना है, ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3, ऑल 4, ये जो है ना, ये नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स बोल रहा है, द स्टेटमेंट नंबर नहीं बोल रहा है, ओनली 2 मीन्स 2 स्टेटमेंट्स। ओके, सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, once the central government notify an area as a community reserve, how many are the correct statements, करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है कम्युनिटी रिजर्व के बारे में, सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करता है, तो इस क्वेश्चन में एक चीज आपको पता होती है कि कम्युनिटी रिजर्व कौन नोटिफाई करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करता है, सो नेक्स्ट ईयर क्या क्वेश्चन कैन कम, हु इज द अथॉरिटी टू नोटिफाई द कम्युनिटी रिजर्व, और चीज क्या है कम्युनिटी रिजर्व, व्हाट इज द कम्युनिटी रिजर्व, कम्युनिटी रिजर्व क्या है, तो पीवाईक्यू एनालिसिस मतलब क्या है, पीवाईक्यू एनालिसिस मींस सच टाइप ऑफ टर्म्स, कीवर्ड से लेके आपको डिटेल में स्टडी करना है, यू हैव टू गो इन डीप, ऑप्शंस को पकड़ के, क्वेश्चन में जो कीवर्ड्स है उनको पकड़ के और डीप आपको रिसर्च करना है, उसी से आपका योर नॉलेज बेस विल ब्रॉडन एंड यू विल गेन सम एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, एंड उसी से कुछ 15, 20, 30 क्वेश्चंस एक्स्ट्रा सही होंगे एंड यू विल गेट द डेफिनेटली द प्रीलिम्स मार्क्स। ओके, 30-40 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेंगे, इसलिए पीवाईक्यू एनालिसिस पे इतना फोर्स क्यों लगाना है, दैट इज द रीजन, सिर्फ क्वेश्चंस नहीं देखना है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर, इसका क्या है आंसर, इसका क्या बोल रहा है, कम्युनिटी रिजर्व सेंट्रल बैंक ने की, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अगर नोटिफाई किया, तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है, द चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन ऑफ द बिकम्स द गवर्निंग अथॉरिटी, ये रॉन्ग है, द चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन नहीं होता है,
द चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन ऑफ द स्टेट नहीं होता है, सम अदर कमिटी और कमीशन इज कमीशनड, ओके। सो चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन इज रॉन्ग, ओके, रॉन्ग। ऐसे जब एक बंदे, एक पर्सन के बारे में या एक मिनिस्ट्री के बारे में, आई ऑलरेडी टोल्ड, एक पर्सन या एक मिनिस्ट्री के बारे में जब भी स्टेटमेंट में लिखा होता है तो दैट स्टेटमेंट बिकम्स रॉन्ग, क्योंकि द चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन ऑफ द स्टेट बिकम्स गवर्निंग अथॉरिटी। ऐसे जब होता है ना, कम्युनिटी रिजर्व है, यहाँ पे रिजर्व क्या है, कम्युनिटी रिजर्व है, ओके। सो लॉजिक आपको समझना है कि अगर एक कम्युनिटी रिजर्व है तो देयर विल बी द कमीशन, नॉट द वन पर्सन। कम्युनिटी मीन्स मेनी पीपल विल बी देयर, ओके। सो लॉजिक समझना है आपको, एनसीईआरटी पढ़ के या पीवाईक्यू एनालिसिस देख देख के आपको पता चलता है कि कम्युनिटी वर्ड आया है। कम्युनिटी मीन्स मल्टीपल पीपल विल कम टुगेदर, मतलब कम्युनिटी एक वर्ड से ही पता चलता है। तो वन पर्सन कैन नॉट बी द गवर्निंग अथॉरिटी। द कमीशन, एक कमीशन होता है जिसमें कम्युनिटी के लोग भी रहेंगे, गवर्नमेंट के लोग भी रहेंगे, और दैट विल बिकम द गवर्निंग अथॉरिटी, ओके। इसलिए स्टेटमेंट 1 इज रॉन्ग। हंटिंग इज नॉट अलाउड, दिस इज करेक्ट, क्योंकि अगर एक कम्युनिटी रिजर्व या फॉरेस्ट जो भी अगर नोटिफाई कर रहे हैं तो हंटिंग अलाउड नहीं करेंगे। हंटिंग इज नॉट अलाउड, जहां पे भी ऐसे हंटिंग इज नॉट अलाउड आता है इन सच एरिया, इवन दिस इज द वेरी जनरल स्टेटमेंट कि अगर कोई कम्युनिटी रिजर्व हो, फॉरेस्ट हो, व्हाई हंटिंग विल बी अलाउड, ओके। हंटिंग इज नॉट अलाउड इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। देन थर्ड स्टेटमेंट क्या है, पीपल आर अलाउड टू कलेक्ट द नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। पीपल आर अलाउड टू कलेक्ट द नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है, क्योंकि नॉन टिम्बर मीन्स क्या है, द फ्लावर्स, द मतलब कि पत्ते, फूल, या नीचे गिरा हुआ कुछ कूड़ा कचरा या कुछ फ्रूट्स जो नीचे गिरे हैं, ऐसी चीजें, या हनी वगैरह कलेक्ट कर सकते हैं, जिससे फॉरेस्ट को कुछ भी हानि नहीं पहुंचती है। नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस मतलब क्या है, नॉन टिम्बर मतलब कि जो फॉरेस्ट का मेन वुड है या फॉरेस्ट का जो भी बैकबोन चीजें हैं उसको कलेक्ट नहीं कर सकते। बट नॉन टिम्बर मीन्स क्या है, द स्क्रैप इन द फॉरेस्ट, ओके। तो उसको कलेक्ट किया तो अच्छा है, फॉरेस्ट भी क्लीन रहेगा एंड लोगों को भी सम पैसा मिलेगा, रोजगार मिलेगा, तो इसलिए दिस इज अलाउड टू कलेक्ट। बट फोर्थ ऑप्शन क्या है, द पीपल आर अलाउड ट्रेडिशनल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। अभी हमने मल्टीपल टाइम्स पीवाईक्यू एनालिसिस के टाइम भी देखा है, एनसीईआरटी पढ़ते हुए भी देखा है, आई ऑलरेडी एक्सप्लेन एनसीईआरटी। ट्रेडिशनल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस मतलब क्या है, फॉरेस्ट को जलाना है, फॉरेस्ट को बर्न करके वहां पे जो मिट्टी बनेगी उसमें मतलब कि एग्रीकल्चर करना है। सो जूम कल्टीवेशन, जूम कल्टीवेशन इज अ ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। जूम कल्टीवेशन या अदर चीजें जो भी नॉन इकोलॉजिकली मतलब इन्वायरमेंट के लिए अच्छी नहीं है, वो चीजें दैट विल नॉट बी अलाउड। इसलिए पीपल आर नॉट अलाउड टू द ट्रेडिशनल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। पीपल आर अलाउड दिया है बट दे आर नॉट अलाउड, ओके। हंटिंग भी अलाउड नहीं है बट यहाँ पे नॉट अलाउड लिखा है, इसलिए हंटिंग इज नॉट अलाउड इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। यहाँ पे लिखना था पीपल आर नॉट अलाउड, बट यहाँ पे अलाउड लिखा है जानबूझ के, इट इज नॉट अलाउड एक्चुअली। ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस विल बर्न द फॉरेस्ट एंड कम्युनिटी रिजर्व बनाने को कुछ मीनिंग ही नहीं है फिर, इसलिए 2 and 3 is correct, 1 and 4 is wrong, so only 2 is the correct answer, okay. So let us move to the question number 39. With reference to scheduled areas, how many are correct? Scheduled area, तो scheduled area क्या है, within the state the notification as scheduled area take place through an order of the president, okay. So this statement is wrong, factual है, but जब भी president कुछ चीज कर रहे हैं, when there is the president, तो many times president का जो statement होता है वो correct होता है, okay. Remember this is not the hard and fast rule, but statement that time president का correct वाला statement ही देते हैं। Within the state the scheduled area take place through the order of the president. Second, largest administrative unit is a district. So remember, जब भी largest administrative unit for whatever the things, community reserve हो, scheduled area हो या कुछ भी चीजें है, largest administrative unit district ही होता है, ओके। सो ऑलवेज रिमेंबर, डिस्ट्रिक्ट जब भी आता है ना वर्ड, लार्जेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट, तो करेक्ट होता है। लार्जेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट ऑलवेज इन मतलब कि बहुत दिनों पहले, मतलब कि बिफोर व्हेन ब्रिटिश वेयर देयर, दैट टाइम आल्सो लार्जेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट फॉर एवरीथिंग वाज द डिस्ट्रिक्ट, एंड लोवेस्ट इज अ क्लस्टर ऑफ विलेजेस इन द ब्लॉक। क्लस्टर ऑफ विलेजेस ऐसे भी जब आता है ना, क्लस्टर ऑफ विलेजेस या विलेज को या क्लस्टर ऑफ विलेज को जब भी इंपॉर्टेंस दिया जाता है, तो दैट इज ऑल्सो द
करेक्ट स्टेटमेंट. ओके, इसलिए स्टेटमेंट 2 इज आल्सो करेक्ट. ओके, रिमेंबर लार्जेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट डिस्ट्रिक्ट है, बट लोवेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट क्लस्टर ऑफ विलेजेस है. विलेज को जब भी इंपॉर्टेंस देते हैं, मतलब कि शेड्यूल्ड एरिया हो या कम्युनिटी रिजर्व हो या फॉरेस्ट रिलेटेड जो भी चीजें हो, तो उसमें विलेज या क्लस्टर ऑफ विलेजेस को अगर इंपॉर्टेंस दे रहे हैं तो दैट स्टेटमेंट इज करेक्ट स्टेटमेंट. एंड स्टेटमेंट नंबर 3, the chief minister of the concerned state are required to submit annual report to the central home ministry on the administrative of the scheduled area. So जब भी ऐसे एनुअल रिपोर्ट होता है, रिपोर्ट कुछ भी चीज का, फॉरेस्ट का एनुअल रिपोर्ट हो या फाइनेंशियल रिलेटेड रिपोर्ट हो, व्हाटएवर एनुअल रिपोर्ट अगर स्टेट से सेंटर को जा रहा है, स्टेट से सेंटर को अगर जा रहा है, सो ऑलवेज रिमेंबर गवर्नर विल बी द अथॉरिटी, गवर्नर, नॉट द चीफ मिनिस्टर और अदर मिनिस्टर. ओके, गवर्नर से ही सेंटर एंड स्टेट में, अगर सेंटर एंड स्टेट में जो भी एनुअल रिपोर्ट का हो या कुछ भी चीज का लेन देन है या शेयरिंग ऑफ द रिपोर्ट्स हो या शेयरिंग ऑफ द डेटा हो, दैट विल टेक प्लेस थ्रू द गवर्नर, नॉट द सीएम, नॉट द चीफ मिनिस्टर. रिमेंबर दिस थिंग. सो गवर्नर होना चाहिए था इधर, बट यहाँ पे चीफ मिनिस्टर दिया है, इसलिए दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट. सो 1 and 2 is correct, 3rd is wrong, so only 2 is the answer. B is the answer. Question number 39 का only 2 is the answer. Okay, so let us move to the last question, question number 40. In which of the following regions was धन्यकटका बुद्धिस्ट सेंटर अंडर महासंघिका लोकेटेड? अभी दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी फैक्चुअल क्वेश्चन, इसको कुछ भी लॉजिक नहीं है, इसका आंसर है आंध्रा. ओके, बट व्हाई दिस क्वेश्चन केम धन्यकटका एंड महासंघिका? These two words are came multiple times in the previous years. 2011 से लेके 22 तक महासंघिका 2-3 बार आया है, धन्यकटका 1-2 बार आया है. तो ये वर्ड्स को पकड़ के आपको सर्च करना है. यू हैव टू सर्च कि धन्यकटका, व्हाट इज धन्यकटका, व्हाट इज महासंघिका, व्हाट आर देयर सेंटर्स, व्हाट आर देयर रीजन्स. तो आपको पता चलता था कि इसका आंध्रा रीजन में धन्यकटका वाज इन द आंध्रा रीजन. तो दिस इज द फैक्चुअल क्वेश्चन. विद इन द एग्जाम अगर आप जाओगे डायरेक्ट, नोबडी विल बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन अगर आपने अच्छे से पढ़ा नहीं है या अच्छे से, बहुत अच्छे से बुद्धिज्म अच्छे से भी पढ़ा है. नोबडी कैन आंसर दिस क्वेश्चन. ओके, बट अगर आपने धन्यकटका एंड महासंघिका सर्च भी किया है थोड़ा, और उसके बारे में इफ यू हैव जैसे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस के नोट्स है, उसमें धन्यकटका के बारे में आई हैव रिटन 2-3 सेंटेंसेस, महासंघिका के बारे में 4-5 सेंटेंसेस लिखे, उसमें डेफिनेटली कौन से रीजन में आता है वो आया है. एंड आंध्रा, उसमें आंध्रा वर्ड आया ही है डेफिनेटली, जो भी मैंने नोट्स, हैंड रिटन नोट्स शेयर किए हैं. सो डेफिनेटली द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी एबल, यू विल बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन. ओके, सो आई होप कि आपको इसका फायदा हो रहा है. आई डोंट नो हाउ मेनी आर वाचिंग. आपको इसका फायदा हो रहा है अच्छे से. आपको अगर पीवाईक्यू एनालिसिस का जो प्लेलिस्ट है, उसका प्लेलिस्ट एंड नोट्स एंड एवरीथिंग, जो भी स्टैटिक के या पीवाईक्यू के नोट्स शेयर किए हैं, उसका अगर लेना है तो गो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, डेफिनेटली गो थ्रू द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. अच्छे से करो. 5 months आर देयर, स्टिल 5 months आर देयर. हम हार्ड वर्क करेंगे, अच्छे से मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करेंगे. पीवाईक्यू एनालिसिस के बाद 2025 के लिए अलग से एक रिवीजन फिर से करेंगे. ओके, सो अप टू 40 क्वेश्चंस खत्म हुए हैं. वी विल सी रिमेनिंग क्वेश्चंस वन बाय वन विद इन 2-3 days में 2023 का प्रीलिम्स क्वेश्चन पेपर खत्म करेंगे. उसके बाद 24 का क्वेश्चन पेपर आएगा. एंड वंस 23 एंड 24 इज कंप्लीटेड, अगेन वी विल डू द रीएनालिसिस, रिवीजन, मल्टीपल थिंग, जैसे कि अभी मैंने बोला कि धन्यकटका, महासंघिका, कम्युनिटी रिजर्व, ऐसे जो कीवर्ड्स है उसको डिटेल में हम स्टडी करेंगे. ओके, सो थैंक यू सो मच.